Alright, so we will start today's session with a quick recap of what we learned yesterday. Last session में हमारा जो कुछ भी हुआ था उसको quickly एक बार revise कर लेंगे. तो we started with second chapter, that is mathematical methods. Physics के numerical solve करने के लिए हम लोगों को mathematics लगता है और जितना mathematics लगता है उसका एक part आपको यहाँ पे इस chapter में करना है. So we will start with very basics. We in fact started with very basics. जैसे मैं आपको बताया था कि any physical quantity, वो चाहे fundamental हो या वो चाहे derived हो, so those physical quantities can be further classified into scalar or vector. Be it fundamental quantity, be it derived quantity, it can be further classified into scalar or a vector. Okay, so as you remember, scalar physical quantity is a physical quantity. For example, मैंने आपको बताया था, we have a physical quantity जिसका complete information देने के लिए हमको सिर्फ एक number की जरूरत है. For example, अगर आपको 2 points का distance बताना है, तो आप बोल सकते हो some number 5 along with unit meter. So you just need a number, उसको लोग बोलते हैं magnitude. So this 5 is a number which is called as magnitude, which gives complete information about the physical quantity. For example, मुझे अगर time बताना है, right? क्या time हुआ? 4 PM, right? तो normally हम लोग एक number का use करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक event, something happened, okay? कल कुछ हुआ था, कल और आज कितना टाइम है? 24 hour, right? So 24 is magnitude, R is a unit, right? More examples. और क्या आप examples सोच सकते हो? जैसे temperature, आज का temperature 28 डिग्री सेल्सियस है, right? Magnitude and a unit, okay? So there are a lot of physical quantities which require only a number for their complete specification, for their complete description, for their full information. Such physical quantities are called as scalar quantity. Then there are some physical quantity, ऐसे भी कुछ physical quantity है जिनका complete information के लिए हम लोगों को magnitude के साथ साथ direction की भी जरूरत पड़ती है. So, for example, velocity. A person is walking with 10 meters per second along a given direction. तो मैं लिखूंगा velocity is 10 meters per second in some direction. Let us say in east. So the moment you describe direction, it becomes a vector quantity. तो यहाँ पे एक magnitude और एक direction की जरूरत पड़ती है. और vector ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो बताने के लिए हम लोग वेक्टर के ऊपर कभी भी एक बार दिखाते हैं. ओके, सम बुक्स, किसी बुक्स में वेक्टर को दिखाने के लिए बोल्ड लेटर यूज होते हैं, सो दे यूज बोल्ड लेटर्स. ओके, तो बोल्ड लेटर आल्सो स्पेसिफाई वेक्टर्स, सिर्फ थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देते हैं, दैट्स इट. एनीवेज, बट टू डिनोट वेक्टर यू नीड टू पुट अ बार ऑन दैट, right? So in short, physical quantity is scalar, just a number for the complete description, or a vector. Magnitude के साथ साथ direction की भी जरूरत है किसी भी physical quantity के complete description के लिए. That is what we have learned in last lecture. अब vector को represent करने के बहुत सारे तरीके हैं. For example, अगर एक vector P point से start हो रहा है और वो Q point तक जा रहा है, तो आप vector को दिखाने के लिए यू ड्रॉ और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और एक एरो हेड दे देते हैं. जिस पॉइंट से वेक्टर चालू हुआ उसको टेल बोलते हैं, जिस पॉइंट पे वेक्टर खत्म हुआ उसको हेड बोलते हैं. ये जो एरो है ये वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, और ये जो लेंथ है वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड बताता है. ओके, और सिंबॉलिकली लिखने के लिए आप लिख सकते हो पी क्यू बार. So PQ bar is a vector which starts from P and ZQ. या फिर मैं बोल सकता हूँ कि PQ की जगह पे मैं इस लाइन को बोल दूंगा ये X है,
तो x के ऊपर बार डाल दूंगा तो फिर आप पी क्यू बार को x बार भी बोल सकते हो। सिंपल, यू कैन जस्ट, इट्स अप टू यू कि आपको डिनोट कैसे करना है। मेरे पास एक वेक्टर है जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो बी पॉइंट पे खत्म हुआ, तो इसको लिखने के लिए मैं ए बी बार लिखूं, चलेगा, मेरी मर्जी। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ए बी बार नहीं लिखना है, मैं इसको बोलूंगा वाई, तो वाई बार वो भी चलेगा। ओके, तो नामकरण तो आप अपनी इच्छा से कर ही सकते हो, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू राइट डाउन वाई बार, इफ यू वांट टू राइट डाउन ए बी बार, इफ यू वांट टू राइट डाउन स्मॉल ए तो स्मॉल ए बार चलता है, डजंट मैटर रियली। पर स्मॉल लेटर्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है वेक्टर्स में, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली हम लोग स्मॉल लेटर्स कब यूज करेंगे वो हम आज देखेंगे, राइट। तो वेक्टर्स, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। नोटेशन ऑफ वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अ वेक्टर starting from P ending at Q is given by PQ bar, which can be denoted by any single letter and a bar above its head. वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं, जहां पे खत्म होता है उसको हेड बोलते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लेते हैं एक नंबर लाइन है, दिस इज अ नंबर लाइन 0 1 2 3 4। मुझे बताना है कि मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर जिसका लेंथ 2 है, तो मैं 0 से स्टार्ट करके 2 तक लेके जाऊंगा। तो लेंथ ऑफ दिस लाइन विल टेल यू मैग्नीट्यूड। मेरे पास और एक वेक्टर है जिसका लेंथ 3 है, तो मैं 0 से 3 तक लेके जाऊंगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्योंकि मैं जब दो वेक्टर को कंपेयर करूंगा, तो सोचो आपको अगर दो चीजों को कंपेयर करना है, तो या तो एक पहला क्वांटिटी छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, हो सकता है ना, होता है। एग्जाम्पल देता हूं, आप रेसिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, यू आर रनिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन डायरेक्शन। अब रेसिंग में अकेले तो भागने नहीं वाले, बाकी भी होंगे कंपटीटर्स, तो क्या होगा, मान लो कि आप ए से ज्यादा फास्ट भाग रहे हो, राइट, तो ज्यादा फास्ट भाग रहे हो, है ना, मतलब योर वेलोसिटी इज मोर देन ए, so definitely your velocity vector, your b, your velocity vector should be shown with a larger arrow, largest line compared to a. okay, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि और एक पार्टिसिपेंट है, वो आप दोनों से ही फास्ट भाग रहा है, and that participant is running with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड in the same direction, क्योंकि रेसिंग में तो सेम डायरेक्शन में भागोगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। और रेसिंग में यू आर गोइंग इन द ईस्ट, समवन इज गोइंग इन द नॉर्थ, ऐसा तो होता नहीं है। ओके, सो तो अब आपको समझेगा कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन का लेंथ भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन का लेंथ आपको बताएगा कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्योंकि बहुत बार फिजिक्स में, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बार फिजिक्स में आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज को कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि हाँ इसका लेंथ ज्यादा दिखाया है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। डायरेक्शन भले ही सेम है बट मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ओके, राइट, तो दिस इज द वे ऑफ शोइंग। कभी कभी इन सम केसेस हमको ऐसी जरूरत होती है, वी नीड, हमको किसी भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर लिखते हैं, उसको मॉड में लिख देते हैं, या फिर हम वेक्टर के ऊपर बाहर लिखते ही नहीं है। So in some cases you may want to show or just to write down magnitude of a given vector, है तो क्वांटिटी वेक्टर, लेकिन हमको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो फिर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं, या तो आप वेक्टर को मॉड में लिख दो, या फिर आप वेक्टर के ऊपर, मतलब ये जो अल्फाबेट है जिससे आप वेक्टर को डिनोट कर रहे थे उसके ऊपर बार डालना ही नहीं, राइट। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट
मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ओके, इतना पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, magnitude along with a direction is a vector quantity, only magnitude is a scalar quantity। इतना आपको पता होना चाहिए टू गो अहेड, क्योंकि अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, और टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको समझना है तो पहले वेक्टर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ओके, so let's start with types of vector। So this was just a very quick revision of what you learned in the last session। So let us start with today's session, that is types of vectors। There are many different types of vectors। उसमें से पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर, या उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। अब इसके नाम में ही है जीरो या फिर नल। ये डायग्राम मैंने इंटेंशनली यहां से हटाई नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम में हम लोग कंपेयर कर रहे थे। हम लोग क्या कंपेयर कर रहे थे? हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि एक रेसिंग कंपटीशन है, उसमें 3 कैंडिडेट दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। ए सबसे कम वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, बी थोड़ा फास्ट, सी और फास्ट। ओके, हो सकता है एक चौथा कैंडिडेट है डी, उसने भागना शुरू ही नहीं किया। Right? He is not running, he is stationary। Okay, maybe साइकिल रेसिंग होगा या मोटरसाइकिल रेसिंग होगा, उसका मोटरसाइकिल खराब है, चालू ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो डी कैंडिडेट है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, मैं इसको डी बार बोल देता हूं, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ये जीरो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसने तो मोशन स्टार्ट ही नहीं किया। तो a vector with zero magnitude क्यों? क्योंकि भाग ही नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। a vector with zero magnitude but a given direction। अभी given direction क्यों बोल रहा हूँ? जब भी इसकी गाड़ी चालू होगी, वो भागेगा तो इसी डायरेक्शन में, राइट? मतलब he will start moving its vehicle in the same direction as that of A, B and C। तो velocity vector of a stationary particle is a null vector, zero vector। क्यों जीरो वेक्टर? क्योंकि ये पार्टिकल स्टेशनरी है, इसका स्पीड है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन है। So a vector with zero magnitude but a given direction is called as zero vector or null vector। मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी नॉर्मली, आई डोंट नो इफ यू वॉच और नॉट, नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी पे, वो जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, वो दिखाते हैं कि एक रॉकेट है। ओके, रॉकेट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मतलब रॉकेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। ओके, अभी तक इसने टेक ऑफ नहीं किया है। द रॉकेट हैज नॉट स्टार्टेड मूविंग येट, इट इज स्टेशनरी। ये स्टेशनरी है। ओके, राइट। तो जब भी ये रॉकेट मूव होना स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा? जब भी ये मूव होना स्टार्ट होगा, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स, है ना? तो व्हेनेवर इट स्टार्ट्स मूविंग, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अपवर्ड्स। बट अभी तो रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग एज ऑफ नाउ, अभी तक मूव नहीं हो रहा है। मतलब इस रॉकेट का वेलोसिटी कितना? जीरो, क्योंकि मूव ही नहीं हो रहा है, राइट? तो वेलोसिटी vector of any particle at rest, be it a rocket which is not moving, be it a runner which is not moving, be it any object which is sitting at rest, be it you at this time, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब आप घर पे शांति से बैठे हो, you are not moving, so your velocity vector at this point of time is 0 bar। क्यों 0 बार? क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन डायरेक्शन तो है, राइट? सो ये एक एग्जांपल है। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल बताने से पहले आई विल गो इनटू सम बेसिक डिटेल्स ऑफ मोशन।
मोशन का पहले मतलब समझना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि एज यू गो अहेड इन द कोर्स, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, मेनी टाइम्स फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस ये समझ में आया कि मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? इफ आई आस्क यू व्हाट इज मोशन, when the object is moving, then it is said to be in motion. Moving with respect to what? Moving with respect to what? कहां से मेजर किया आपने? मान लो एग्जाम्पल देता हूं. नाउ इफ आई से कि आई एम एट रेस्ट, आई एम नॉट मूविंग, मैं मूव नहीं हो रहा हूं. विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं अर्थ पे बैठा हूं इसलिए मैं मूव नहीं हो रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. लेकिन अर्थ खुद तो चक्कर लगा ही रहा है अराउंड सन. मतलब मैं बोलूं अगर आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सन, दैट इज रॉन्ग थिंग, क्योंकि अर्थ इज मूविंग, आई एम ऑन द अर्थ, आई एम ऑल्सो मूविंग. तो आई एम नॉट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सन, आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. मतलब क्या? मतलब ये कि कभी भी मोशन की जब बात करते हो तो सबसे पहले एक रेफरेंस सिस्टम हमको कंपलसरी होता है. रेफरेंस सिस्टम मतलब कहां से ऑब्जर्व किया, कहां से मेजरमेंट ली. क्योंकि मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया. कितना डिस्टेंस कवर किया पता ही नहीं. क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट ही नहीं किया. सबसे पहला काम आप क्या करते हो? एसोसिएट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब सबसे पहले एक्सिस फिक्स करो. तो मैं बोलता हूं कि इनिशियली जहां पे ऑब्जेक्ट था, ये बॉल शुरू में जहां पे था, मैं उसको ओरिजिन मान लूंगा. अब मैं हमेशा उसका मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ मेजर करूंगा. मान लो 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल 2 पे है, राइट? करेक्ट. 2 कहां से? ओरिजिन से. कहां से? इस पॉइंट से, ओ से. यहां से नहीं, पी पॉइंट से 2 नहीं है. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड कि जब भी मोशन की बात आएगी, वो आगे आएगा. मैं फिलहाल आपको एक जनरल बैकग्राउंड दे रहा हूँ, आगे मोशन देखना है. मोशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी है. एक सिंपल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, वेरी सिंपल. ये थोड़ा हायर लेवल हो गया. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. आई हैव अ पॉइंट पी. एक पॉइंट है पी इस बोर्ड पे, कहीं तो एक पॉइंट है पी. मैंने आपको पूछा वेयर इज पॉइंट पी? बोर्ड पे. बोर्ड पे कहां पे? डोंट नो. क्यों? क्योंकि मेजर कहां से कर रहे हो पता ही नहीं है. तो कहां से मेजर कर रहे हो? अगर आप यहां से मेजर कर रहे हो ओ से, तो आप बोलोगे पहले ये x डिस्टेंस, फिर ये ऊपर y डिस्टेंस. तो आप बोलोगे पॉइंट P इज एट x, y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O. लेकिन अगर यही ओरिजिन, मतलब यही कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो कि मैंने यहां से मेजर करना चालू किया O डैश से, तो उसी P पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाएगा. और सिंपल लैंग्वेज में जाते हैं, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे. मान लो आपके सामने एक बॉटल रखा है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट बॉटल? इनकम्प्लीट क्वेश्चन. कहां से मेजर किया? दैट इज इंपॉर्टेंट. मैं खुद से मेजर कर रहा हूं, मैं वो दरवाजे से मेजर कर रहा हूं, तो कहां से मेजर कर रहा हूं? तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. गुड. अब इसका हमारे जीरो वेक्टर के साथ क्या कनेक्शन है? दैट इज इंपॉर्टेंट. मैंने आपको जीरो वेक्टर, नल वेक्टर का एक एग्जांपल दिया. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट इज अ जीरो वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन है. सिमिलरली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है. ओके, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. राइट? हर एक सेकंड में 1 मीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन. 1 सेकंड में 0 से 1, फिर 1 सेकंड में 1 से 2, फिर 1 सेकंड में 2 से 3, फिर 1 सेकंड में 3 to 4. अब because the object is moving with respect to some reference frame, किसी ओरिजिन के हिसाब से वो मूव हो रहा है. ओके,
वेलोसिटी वेक्टर तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन अब कौन सा वेक्टर जीरो हुआ? एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो हुआ। क्यों? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुआ ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो acceleration vector of a particle or an object moving with constant velocity is a zero vector. तो जीरो वेक्टर वेलोसिटी भी हो सकता है, जीरो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, जीरो वेक्टर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जीरो वेक्टर फोर्स भी हो सकता है। सिर्फ इतना है कि मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन डायरेक्शन होना चाहिए। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ any object at rest is a zero vector. Acceleration vector of any object moving with constant velocity is also a zero vector, right? तो अब जीरो वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। सो व्हाट इज अ जीरो वेक्टर? सिंपल लैंग्वेज, क्या समझा आपको? एंड यस, एज वी प्रोग्रेस इन दिस कोर्स, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे, आई वांट यू टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बुक्स। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, दिमाग में फिक्स कर लो, एंड देन यू कैन राइट ऑन योर ओन। सिर्फ आपको क्या समझा है उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना होता है। हमको क्या समझा है जीरो वेक्टर से? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। तो अगर मैंने एग्जाम में पूछ लिया डिफाइन जीरो वेक्टर, तो क्या लिखोगे? अ वेक्टर having zero magnitude with a particular direction is known as zero or null vector. ओके, अब डिनोट कैसे करेंगे? जीरो बार, सिंबलिकली it is denoted by zero bar. Examples, you can write many examples of this. Example number 1, as I told you, the velocity vector of a stationary object is a zero vector. The velocity vector of a stationary object is a zero vector. और दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, the acceleration vector of an object moving with constant velocity. The acceleration vector of an object moving with constant velocity is also a zero vector. अब ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है। कैसे? हम गाड़ी चला रहे हैं, ओके, बहुत बार हम गाड़ी का एक्सेलरेटर फिक्स कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गाड़ी का एक्सेलरेटर फिक्स करना मतलब कि अब आपका स्पीड बढ़ नहीं रहा और आप कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, यू मूविंग कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ योर व्हीकल इज अ नल वेक्टर। क्यों? हाईवे पे हम जा रहे थे,
स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, मेरी गाड़ी में सेटिंग है जिसमें 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर मैं जा नहीं सकता, तो मैंने वो बटन ऑन कर दिया। होता है, अभी नई गाड़ियों में होता है, स्पीड सेटिंग होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ओके, तो मैंने पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया, मतलब मैं टॉप स्पीड पे हूँ, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, और मुझे स्ट्रेट 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 जाना है, क्यों, हाईवे ही वैसा है, सीधे सीधे जाना है हमको। तो एक्सीलरेशन हो रहा है कि गाड़ी का, नहीं, पर वेलोसिटी है, यस। सो एक्सीलरेशन वेक्टर of that vehicle which is moving with constant velocity is also a zero vector. Okay, so this is something you have experienced yourself. Okay, good. Second type of vector is resultant vector. अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये समझने में तो प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि अगेन दिस इज कनेक्टेड विथ योर रियल लाइफ, एंड फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू मोशन आर कनेक्टेड विथ रियल लाइफ। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको आपके घर से निकल के किसी एक जगह पे पहुंचना है। मान लो आपको कॉलेज जाना है, पॉइंट सी तक जाना है। ओके, बट आपको रास्ता नहीं पता। आपको पता है हाँ वहां कहीं तो है, बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता। फिर आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट मूविंग। आप पहले यहाँ पे आ गए, मान लो समवेयर हियर, तो यू हैव रीच्ड अ पॉइंट पी। तो ये एक वेक्टर हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ, नाम दे देते हैं इसको एच पी बार, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ एक्स बार। ओके, फिर यहाँ पे किसी से पूछा मुझे कॉलेज जाना है, उसने बोला अच्छा गो इन दैट डायरेक्शन, तो तुम वहां से निकले, सीधा कॉलेज पे आ गए। ओके, तो ये नया वेक्टर बन गया पीसी वेक्टर। पीसी वेक्टर, इसको मैं नाम देता हूँ वाई वेक्टर। ओके, अल्टीमेटली कहां से कहां गए, फाइनली, मतलब ओवरऑल इफेक्ट, रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्ट क्या है इसका? इसका रिजल्ट तो यही आया कि अल्टीमेटली आप घर से निकल के कॉलेज तक पहुंच गए। करेक्ट, तो फाइनल रिजल्ट तो यही है। ओके, अब अगर मुझे एग्जैक्टली पता होता कि कॉलेज कहाँ पे है, तो फिर मैं ये करता ही क्यों? आई why I will be doing things like that? मैं सीधा सीधा अपने घर से निकलता और डायरेक्ट कॉलेज में जाता। राइट, समथिंग लाइक दिस। राइट, तो अब आइडिया क्या है, पहले ये समझ लो, पहले आइडिया समझ लो। रिजल्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्ट? इन दिस केस एच से पी पे गए, पी से सी पे गए, रिजल्ट क्या आया? एच टू सी। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर बना है, इसको मैं बोलूंगा आर बार, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। तो ये जो रिजल्टेंट आया है, ये सिंगल वेक्टर है, यस ये सिंगल वेक्टर है। ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर है एक्स बार और वाई बार। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। राइट, तो x बार और y बार का कंबाइंड इफेक्ट, h से p गए, p से c गए, तो जो दो वेक्टर हमारे पास है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ? h टू c। राइट, तो रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर which gives you the same effect as that of individual vectors together। मैं वापस एक बार समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा आइडिया है। ओके, अब बात ऐसी थी, हमें एक पॉइंट से चालू करना है, हमें एक पॉइंट तक पहुंचना है। ओके, हम पहले एच पॉइंट से किसी पी पॉइंट पे गए,
P पॉइंट पे गए। तो ये हो गया एक वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ x बार। नाम मेरी मर्जी, नाम मुझे जो देना है मैं इसको x बार बोलूँ, y बार बोलूँ, z बार बोलूँ, t बार बोलूँ, v बार बोलूँ, मेरी इच्छा, डजंट मैटर। ओके, फिर मैं P पॉइंट से गया Q पॉइंट पे। So I am going from some point P to some other point, let us say Q. तो मैं P से Q पे आया। ओके, फिर मैं Q से गया C पे। ओके, तो फाइनली इसको मैं बोलता हूँ Z बार, इसको मैं बोलता हूँ Y बार। तो फाइनली मैं कहां से कहां पहुंचा? फाइनली मैं H से C पे पहुंचा। सो H से C पे पहुंचा। तो ये जो सिंगल वेक्टर है, कौन सा सिंगल वेक्टर? ये HC वेक्टर, जिसको मैं R बार बोल रहा हूँ, ये सिंगल वेक्टर है। इसने क्या किया? इसने X बार, Y बार और Z बार का कंबाइंड इफेक्ट दिया, क्योंकि X बार मुझे H से P पे ले गया, Y बार मुझे P से Q ले गया और Z बार मुझे Q से C ले गया। अल्टीमेटली R बार ने ये सारे वेक्टर्स को कंबाइन करके मुझे सेम इफेक्ट दे दिया। So resultant vector of two or more vectors is a single vector. Resultant vector is always a single vector. Resultant vector of two or more, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं अभी। Resultant vector of two or more vectors is a single vector which gives you the same effect of all the vectors combined together. Good, simple concept. एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, मैं जब भी एग्जांपल देता हूं तो मैं रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट देता हूं। H से गए P पे, P से गए Q पे, Q से गए C पे, तो वो एक चीज दिमाग में बैठ जाती है कि ये सारे के सारे वेक्टर्स का यूनिट मीटर है, मीटर है, मीटर है। ऐसा नहीं होता है। इट कैन बी वेलोसिटी आल्सो। मैं बोल सकता हूँ H से P पॉइंट तक जाते वक्त मेरा वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड इन सम डायरेक्शन, P से Q जाते वक्त था 15 मीटर पर सेकेंड इन सम अदर डायरेक्शन। Q से C जाते वक्त मेरा वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड इन सम अदर डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी वेक्टर v1 बार, ये वेलोसिटी वेक्टर v2 बार, ये वेलोसिटी वेक्टर v3 बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नहीं, वेलोसिटी वेक्टर का भी हो सकता है, फोर्स वेक्टर का भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर का भी हो सकता है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मैं स्टार्टिंग में इनिशियली सिर्फ सिंपल करने के लिए बताता हूँ, H से P गए, P से Q गए, Q से Z गए, तो अल्टीमेटली H से C पहुंचे। सो दैट इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर कैन आल्सो बी अ फोर्स वेक्टर। कैसे? सिंपल, मेरे पास एक बॉल था H पे, मैंने इसको किक मार दिया, मतलब मैंने फोर्स लगाया, तो यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर बन गया। ये पहला फोर्स है F1। उस पहले फोर्स ने, F1 ने क्या किया? बॉल को यहाँ पे लाया। फिर मैंने दूसरा फोर्स लगा दिया, दूसरा फोर्स बॉल को Q पे लेके जा रहा है। फिर मैंने तीसरा फोर्स लगा दिया, तीसरा फोर्स जो है वो Q से C पे लेके जा रहा है, राइट? तो व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट फोर्स, फाइनल फोर्स इज F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार। So resultant vector is a single vector of two or more vectors which gives you the same effect of all the vectors combined together, and it can be, resultant vector can represent any physical quantity which is a vector quantity। वो फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। एक बॉल है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ऐसा एक फोर्स लगाया F1, और दूसरे डायरेक्शन से भी एक फोर्स लगाया F2। अब ऐसा है कि F1
फोर्स का मैग्नीट्यूड और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यहां से भी 5 न्यूटन, यहां से भी 5 न्यूटन, व्हाट इज रिजल्टेंट? 0। दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट हियर इज अ नल वेक्टर, इट इज आल्सो अ फोर्स वेक्टर. So resultant vector of two vectors which are equal in magnitude but opposite in direction is a null vector if they're acting at the same point. Okay, तो ये भी हो सकता है. So just a word of caution, थोड़ा संभल के चलना है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बता देता हूँ H से P पे गए, P से Q पे गए, तो वो दिमाग में डिस्प्लेसमेंट रख के मत चलो. वेलोसिटी वेक्टर का भी रिजल्टेंट आ सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर का भी रिजल्टेंट आ सकता है, फोर्स वेक्टर का भी रिजल्टेंट आ सकता है. सो only thing that you need to know is resultant vector is a single vector, that is important, okay, which gives you resultant vector of many other vectors, of two or more vectors is a single vector which gives you the same effect as produced by all the vectors together. तो एक काम करते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये डायग्राम को रहने देते हैं और सिर्फ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल देता हूँ मैं नाम को. मैं बोलता हूँ ये O से स्टार्ट हुआ था, एक मिनट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं ऐसा बोलूंगा O पॉइंट पे पहला वेक्टर एक्ट हुआ, वो ऑब्जेक्ट को O से A पे लेके आ गया, A वेक्टर. दूसरा वेक्टर A से B पे एक्ट हुआ, B बार. तीसरा वेक्टर B से एक्ट हुआ टुवर्ड्स C, तो C बार. तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R बार. Okay, so now we can define. So as I told you, important is concept, important is just understanding of what we are writing down, that's it. So what is the concept? Resultant vector, start yahan se karna. The resultant vector of two or more vectors, दो कम से कम चाहिए, एक सिंगल वेक्टर का क्या रिजल्टेंट, वही वेक्टर. what do you mean by resultant of single vector? वही तो सिंगल वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं होता है. the resultant vector of two or more vectors is a single vector, that produces which produces the same effect, which produces the same effect as that of all the vectors together, तो A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर ने मिलके जो टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो सिंगल वेक्टर R बार ने कर दिया. तो लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल, R बार is the resultant vector, of A bar, B bar and C bar. So if you look at this diagram, A बार ने क्या किया, 0 से A पे लाया, O से A. B बार ने क्या किया, A से B पे लेके गया. C बार ने क्या किया, B से C पे लेके गया, राइट. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, टोटल इफेक्ट क्या हुआ, 0 O to C. और R बार इस अकेले ने वो सारा काम कर दिया, राइट. So resultant vector of two or more vectors, right, is that single vector which produces the same effect of all other vectors combined together. हो गया. अब है तीसरे टाइप का वेक्टर which is a null vector. Okay,
Next type of vector is negative or opposite vector. अब ये इंटरेस्टिंग केस है। देखो ये आपको सब पता है, सिर्फ उसको रिलेट करना है। मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है जो दूसरे नंबर का नेगेटिव है। मेरे पास एक नंबर है जो दूसरे नंबर का नेगेटिव है। मान लो मेरे पास नंबर था 1, फिर मेरे पास -1 है, ठीक? मेरे पास नंबर था 2, फिर मेरे पास -2 है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू विल कनेक्ट नाउ। जब आप नेगेटिव की बात करते हो ना, तो इन कंपैरिजन करते हो, राइट? You always compare and then say this number is negative with respect to that, है ना? हमेशा ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो ये याद रखना, नेगेटिव इज ऑलवेज इन कंपैरिजन विद समथिंग, ओके? तो नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करने के लिए पहले एक वेक्टर हमारे पास होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए बार ऑलरेडी है। अब मैं बोलूंगा a negative vector of a given vector a bar is another vector which has the same magnitude as that of a bar but has opposite direction. तो a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मतलब एक और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है एज दैट ऑफ a बट डायरेक्शन अपोजिट है, राइट? आइडिया बहुत सिंपल है। नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर किसका? सम गिवन वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, आपके पास पहले से एक वेक्टर था, उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, आप बोल रहे हो और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये गिवन वेक्टर ए बार जितना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर of the same magnitude but opposite direction. This is important. तो negative vector कभी भी in comparison होता है, okay? So define कर लेंगे a negative vector b bar of a given vector. Given vector कौन सा था? a bar of a given vector a bar is a vector which has the same magnitude but opposite direction So a negative vector b bar of a given vector a bar, तो given vector a bar था, negative vector b bar है, is a vector which has the same magnitude but opposite direction, right? So example in figure above, you can say b bar is opposite vector of a bar. Of a bar, उल्टा भी बोल सकते हैं, a bar is opposite vector of b bar, ऐसा भी बोल सकते हैं, अपोजिट या फिर नेगेटिव दोनों ही बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो, b bar is negative vector of a bar या फिर a bar is negative vector of b bar, ऐसा भी बोल सकते हो। तो it's the same thing. अब एक बार क्या हुआ, I went to another city, तो मुझे कहीं जाना था, I wanted to go to some office, okay? मेरा घर था यहाँ पे, वो ऑफिस था यहाँ पे, और मैं पहुंच गया एक पॉइंट पी पे, ओके? तो ये मेरा घर है, यहाँ पे सिग्नल है, ओके? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल होता है तो वहाँ पे, राइट? एंड आई वाज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था कि जहाँ मुझे जाना है वो ऑफिस इस पर्टिकुलर सिग्नल के पास में। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैं दूसरे सिग्नल पे पहुंच गया, देन
आफ्टर रीचिंग एट सिग्नल बी, मैंने किसी से पूछा कि अरे वो ऑफिस कहाँ पे है, उसने बोला अरे वो तो पिछले सिग्नल पे है, पिछले सिग्नल पे है। मतलब क्या हो गया कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा हो गया, ये ए बार हो गया। ओके, अब उसने बोला कि बस पीछे जाओ, बस पिछले सिग्नल तक जाओ, मतलब मुझे मेरा डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव वेक्टर चाहिए था। दैट इज द आइडिया। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ये केस, पहुंचना था ओ पे, अभी होम रिलेवेंट इरेलीवेंट हो गया, घर पे है कभी, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पहुंचना था ओ पे, पहुंच गए पी पे, फिर किसी ने बोला नहीं वापस ओ पे जा, वापस ओ पे जाना है तो दोनों वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ज्यादा होगा तो क्या, ज्यादा होगा तो ओवरशूट, आगे निकल गए। अगर मैग्नीट्यूड कम हुआ तो क्या, फिर बीच में ही कहीं पे रुक गए। तो नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector of the same magnitude but opposite direction. What is so difficult? Nothing. Simple, simple. Okay, right. So this is how you are supposed to understand things. Now we will introduce one more type of vector today. Okay, so this fourth type of vector which is called as equal vector. अभी आप अंदाजा लगा ही सकते हो what is equal vector. Equal vector of a given vector is that vector which has same magnitude and same direction and they represent same physical quantity. यहाँ पे ये important है क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो मैं कभी भी a बार इक्वल टू b बार, या फिर मैं अभी जैसे नेगेटिव वेक्टर है ना, नेगेटिव वेक्टर को कैसे लिखते हो, नेगेटिव वेक्टर को आप लिखते हो a बार इक्वल टू माइनस b बार। तो फिजिक्स में कभी भी always remember this, a bar equal to minus b bar, a bar equal to b bar। ये कब लिख सकते हो, जब a बार और b बार, a बार और b बार सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो तब। You cannot write down velocity equal to minus acceleration. You cannot do that. You cannot write down velocity equal to acceleration. आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। हाँ ऐसा लिख सकते हो, velocity is equal to acceleration into time, that is okay, right? तो opposite vector और equal vector जब आप बोलते हो तो उस केस में दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, राइट? गुड। तो मुझे अगर दो वेक्टर इक्वल है ये बताना है, और दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने चाहिए। So two vectors a bar and b bar are said to be equal vectors if and only if number 1 they have same magnitude, number 2 they have same direction, number 3 they represent same physical quantity. Okay, तो इतना पता होना चाहिए आपको, this is what you should know. So two vectors, just a minute, two vectors a bar and b bar are said to be equal vectors, are said to be equal vectors if and only if, I double f is shortcut notation of if and only if and only if. Condition number 1, both vectors have same magnitude, have same, या फिर equal magnitude is better word to use, have equal magnitudes. Number 2, both vectors have same direction,
Number 3, both represent same physical quantity. Both represent same physical quantity. जैसे दोनों डिस्प्लेसमेंट या दोनों वेलोसिटी या दोनों एक्सेलरेशन या दोनों फोर्स, so both represent same physical quantity. Okay, so two vectors are equal vectors if these three conditions, if they are satisfying these three conditions. Okay, so good for today. We will stop at this point, and with more type of vectors we will continue in the next session.